So, before starting with the lecture, we will first read the preamble and I will point out the headings which we will be covering under it. The preamble goes on like this: We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give to ourselves this Constitution. Hello everyone. In this video, I will discuss about the preamble to the Indian Constitution. The following headings I will be covering in this video. First is the meaning of the preamble. Second is the history of preamble. And third are the contents of the preamble. Under the heading contents, I will be dealing with three subheadings. First is source of the preamble, then the nature of polity, and lastly the objectives or goals enshrined in the preamble. So I will be starting with the meaning of the Indian preamble. Now, in every statute or in every law, a preamble has been attached. This preamble, which is attached to every statute, it introduces us about the statute and it also tells us the scope of that statute. हर law में एक preamble attach होता है and it tells us about that law, it tells us about the scope of that law, and it introduces us with that law. Similarly, the preamble to the Indian Constitution introduces us with the Constitution of India. However, the preamble to the Indian Constitution has been given an extended meaning and historical significance has been attached to the preamble. Now coming to the meaning of preamble, जो कि Constitution में meaning दिया गया है Indian preamble को, जो ज़्यादा extended meaning दिया गया है, जो ज़्यादा importance attach की गई है, वो इसलिए कि the preamble to the Indian Constitution lays down the ideals and the vision which the founding father or the constituent makers had in their mind while they were drafting the Indian Constitution. And it can be said that the spirit of the Indian Constitution is depicted or is resonated in the preamble to the Indian Constitution. So much importance has been attached to the preamble of the Indian Constitution that it was called as the soul of the Indian Constitution. The preamble was called the soul of the Indian Constitution in the case of Golaknath versus State of Punjab. So, with this we can deduce that preamble to the Indian Constitution is really very important provision. Now next heading which I am going to take is the history of preamble. Now, the provision of the preamble has been incorporated in the Indian Constitution from the Constitution of USA. अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने preamble का प्रोविजन बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 में बाय अ रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन को कहते थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. And this objective resolution was presented by Pandit J.L. Nehru. 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा and it was adopted on 22nd Jan 1947. यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाकर preamble to the Indian Constitution बन गया. So this objective resolution which was passed by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th December 1946 was adopted on 22nd January 1947 and it laid down the foundation of the preamble to the Indian Constitution. Next, we will discuss in detail about the contents of the preamble. Contents of the preamble को हम लोग 3 सब headings में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही important है. First is source of preamble,
सोर्स ऑफ प्रियम्बल क्या है, ये क्वेश्चन प्री में अक्सर पूछ लिया जाता है. देन द नेचर ऑफ पॉलिटी, किस तरह की गवर्नमेंट इंडिया में है वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, नेचर ऑफ पॉलिटी. एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोगों को अचीव करना है वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है. The first subheading under the heading of contents of the Indian preamble is the source of the Indian Constitution. Indian Constitution कहाँ से आया है? So the source of the Indian Constitution is the people of India, and it is clearly depicted from the lines, "We the people of India having solemnly resolved to constitute India." Now, the word people here means three things. First, people are the source of the Constitution of India. Secondly, the people are supreme or they are sovereign. And third here, the people means the people in aggregate capacity and not any individual. The word resolve which has been used here, it shows that we the people of India have firmly decided to give to ourselves this constitution. Thus, it has been a formal declaration or decision on our part. And constitute means, constitute here signifies that we have given this constitution a legal meaning. The second heading which we are going to discuss relating to the preamble is the nature of polity. नेचर ऑफ पॉलिटी का मतलब है किस तरह की गवर्नमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसेज की हुई है. तो इंडिया में नेचर ऑफ पॉलिटी डिफाइंड है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. इसमें यह ध्यान में रखने की बात है कि द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट. प्रियम्बल में आज तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है जो कि 42nd अमेंडमेंट है. उससे 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड हुए हैं 1976 में. सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब होता है कि द इंडिया हैज़ नो सुपीरियर मास्टर और सुप्रीम मास्टर. इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद ही डील कर सकती है, डिसाइड कर सकती है, और वहाँ इस कंट्री में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है. सो दिस मीन्स दैट India doesn't acknowledge any sovereign master and it is free to take its own decision, and there is no interference from any external authority in any internal or external matters of India. सोशलिस्ट का मतलब होता है, अगर हम लोग सोशलिज्म देखें कि क्या होता है, सोशलिज्म इज दैट पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज वेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट ओनली. सोशलिस्ट का अगर हम लोग मतलब देखते हैं तो सोशलिज्म इज दैट पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर होलली वेस्टेड इन द स्टेट, और वहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है. द होल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी इज वेस्टेड विद द स्टेट ओनली एंड देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेज. बट इंडिया में आइडियल सोशलिज्म का कंसेप्ट नहीं पाया जाता है. इन इंडिया देयर इज मिक्स्ड सोशलिज्म. मिक्स्ड सोशलिज्म का क्या मतलब है कि इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक, दैट इज स्टेट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दे को एग्जिस्ट और दोनों मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को ओन कर सकते हैं. तो इंडिया में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट. सेक्युलर, सो जैसे मैंने बताया कि वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पहले से सेक्युलर नहीं थी और बाद में जाकर 42nd अमेंडमेंट के बाद जाकर सेक्युलर हुई है. ये टर्म पहले से इम्प्लिसिट था कॉन्स्टिट्यूशन में. जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से हम लोग सेक्युलर हैं, बस अब एक्सप्लिसिटली या एक्सप्रेसली इस टर्म को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. इंडिया सेक्युलर है, इसका मतलब है कि देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन. वी डू नॉट एक्नॉलेज एनी स्टेट रिलीजन ऑफ आवर ओन. हम सारे रिलीजन यहाँ को एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर. अनलाइक इन पाकिस्तान जो कि इस्लामिक स्टेट है, इंडिया ऐसा कोई स्टेट नहीं है. इंडिया में सारे रिलीजन्स रह सकते हैं और पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसी वजह से इंडिया के सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी कहते हैं. दूसरा है कि इंडिया में रिलीजन के बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. तो सेक्युलर का मतलब यहाँ भी है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. तीसरा, अगर सेक्युलरिज्म का मतलब हम लोग समझें तो इसका मतलब है कि द स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द पीपल.
स्टेट ऐसा कोई भी एक्ट या लॉ या फिर ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है विच इन्फ्लुएंसेस विद द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द पीपल। अब रिलीजियस जो प्रैक्टिस होती है वो दो प्रकार की होती है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सो द स्टेट कैन interfere with the non-essential religious practices but it cannot interfere with the essential religious practices। अब डेमोक्रेटिक का मतलब हम लोग समझते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो आया है ग्रीक टर्म से, जिसको कहते हैं डेमोस, जिसका मतलब है पीपल, एंड क्रेटोस विच मीन्स अथॉरिटी। तो डेमोक्रेटिक का अगर हम लोग कंबाइंड मीनिंग देखें तो इट इज़ कॉल्ड मीन्स अथॉरिटी ऑफ पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो द रिप्रेजेंटेटिव्स, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग के आ रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द इंडिया। दैट इज़ वाई इंडिया की जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दूसरी चीज़ है यार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तीसरी चीज़ है वी हैव राइट टू वोट एंड वी आर इन्फॉर्म्ड सिटीजनट्री। हम लोग को सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, वी हैव द राइट टू वोट, और यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि द हेड ऑफ द स्टेट जो कि प्रेसिडेंट होता है इज़ इलेक्टेड। यहाँ हम लोग का प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ होकर आता है। एंड रिपब्लिक का मीनिंग दूसरा है कि देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्क। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्क का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई राजा नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि राजा के मरने के बाद जो उसका लड़का प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग के यहाँ जो प्रेसिडेंट दैट इज़ हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ होकर आता है और हेरिडिटरी मोनार्क का सिस्टम नहीं। तो ये है नेचर ऑफ पॉलिटी। अब हम लोग थर्ड हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now, in the last subheading relating to the goals and objectives of the Indian Constitution, I will be telling you about these 5 headings which are mentioned in the preamble and which the Constitution seeks to achieve. यही goals and objectives के मद्देनज़र रखते हुए इनको माइंड में लेते हुए ही फंडामेंटल राइट्स या DPSP या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। जस्टिस का मतलब है कि ऐसा एक्ट विच प्रमोट्स द जनरल वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल इन द कम्युनिटी। ऐसा एक्ट होना चाहिए, अ जस्ट एक्ट इज़ वन विच प्रमोट्स द वेल बीइंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द community. This means justice, and in the preamble it is divided into 3 headings: social, economical and political. Now we see equality. Equality का मतलब है कि इंडिविजुअल्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट। किसी भी चीज़ में इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब होता है इक्वालिटी। और इक्वालिटी अगर हम लोग देखें तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है प्रियम्बल में। लिबर्टी अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो लिबर्टी 2 प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी होती है कि इंडिविजुअल्स के एक्शंस में स्टेट का आर्बिट्ररी या अनड्यू इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं किया जाना चाहिए। और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि देयर आर सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स विच शुड बी सिक्योर्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे अगर पॉजिटिव लिबर्टी का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं तो आर्टिकल 19(1) जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव लिबर्टी का। लिबर्टी अगर हम लोग प्रियम्बल में देखें तो डिफाइंड है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यूनिटी और इंटीग्रिटी को अगर हम लोग समझें तो यूनिटी का मतलब होता है कि हम लोग के अंदर एकता होनी चाहिए। एंड द वर्ड इंटीग्रिटी हैज़ बीन एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोगों के बीच में ब्रदरहुड या स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड या जिसको भाईचारा कहते हैं वो होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, या फिर भेदभाव नहीं रखना चाहिए एक दूसरे से। तो दीज आर द आइडियल्स और द गोल्स विच आर enshrined in the preamble। और इसी के मद्देनज़र पे फिर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ TPSP फॉर्मुलेट हो। नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, एंड वेदर प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसमें हम लोग 2 केस भी देखेंगे, बेरुबारी केस एंड केशवानंद भारतीज केस। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।